Hello everyone, welcome to Soumya.Shantipuri. And as we have said, as we have promised that we are coming up with a bang, and that promise we have kept. Today we are launching the Thoughtcast podcast where every doubt would be solved. That means here we are gonna be coming up with interviews of field experts where you will be asking questions and we'll be solving the doubts. As we have announced, कि हम लोग इस बार जो पहला एपिसोड लाएंगे वो है इंग्लिश ऑनर्स जो स्टूडेंट्स परस्यू करना चाहते हैं आफ्टर 11 एंड 12 उन लोग के लिए, और उन लोग का जितने सारे डाउट्स है वो हम एक जगह लेके आए हैं एंड वी आर आस्किंग द क्वेश्चन टू field expert. That means here we got Miss Sohini Das, who is pursuing English honors in Kolkata, and she has just completed her second year, and all the questions will be answered, all the doubts will be solved right in this video. तो पूरा वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए Soumya.Shantipuri को। तो आज का वीडियो शुरुआत करते हैं, आज का इंटरव्यू शुरुआत करते हैं। पहले ही एक बार आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आप कौन सी कॉलेज से बिलोंग करते हैं और क्या क्या कोर्स में आप है। I'm from Kolkata. My name is Sohini Das, and I'm from Sarojini Naidu College, which is under Barshat University, and I'm doing BA English Honors second year. Okay, that's fine. So I'll be starting with the first question. That why have you selected English honors course, not other courses, not science stream, not commerce stream in your undergraduation program? English is one of my favorite subject. I regularly read storybooks, poems, short stories, novels, fiction, non-fiction, etc. These are the things I like to read, and I also loved it. And I choose English honors rather than BA General because, first of all, BA English honors is a very much challenging subject, a challenging course for me, and it always acquires more knowledge. First of all, it is English is a creativity subject. English is an art. Okay, and also it gives us more knowledge, and it improves our writing. It improves our skills. Then it also improves our vocabulary power. So for this reason, I choose this subject English because I loved creativity. Okay, that's great. So you have talked about BA General and BA English honors. So what is the difference between these two? BA English honors and BA General, of course, there is a very much vast difference between this because BA English honors is accordingly this stream is specialized only in one particular subject. That is, if we read English, then we only concentrate on English. But if we do BA General course, then we should study other subjects also. Past year, that is my favorite is Shakuntala is one of my favorite. Kadambari is one of my favorite. Then from European literature, if I talk about, then Odyssey, then Plot of Gold. These are the most famous novels are there, which I liked it. And from second year, I have Harry Potter is one of my favorite. Harry Potter. Then Through the Looking Glass, which is written by Lewis Carroll. Then Gulliver's Travels. I'm saying that if like for example in case of BCom honors, other than accounting there is also economics. English को छोड़ के और कुछ subject है, मतलब एपिक और ये नोवेल्स पोएम्स ये सब छोड़ के और कुछ सब्जेक्ट होता है क्या? सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब होता है क्या? हाँ होता है, क्योंकि
देखो हमारे जो ऑनर्स सब्जेक्ट है ना, ऑनर्स पेपर एक्चुअली 3 इयर्स का होता है और यहाँ पर 6 सेमिस्टर्स होता है। ओके, तो 6 सेमिस्टर्स आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। एंड हमारा जो ऑनर्स सब्जेक्ट है, ऑनर्स सब्जेक्ट तो होगा ही, वो तो कंपलसरी है। एंड द सेकेंड वन इज हमारे एक पास सब्जेक्ट भी होगा। You choose anything, sociology, Bengali. I choose sociology. I choose Bengali also. And another subject is there, another course will be there, that is skill enhancement course, which is according to English training. That is, suppose I got SEC, which is a skill enhancement course. And on that course, I really learned that how we should how we should acquire in creativity, how we should do grammar. These types of things we should learn from that course. I want to specially focus on that skill enhancement course, that how is it different from the actual streamline, and how does it benefit to you in the career opportunities? If I tell that देखो जो इंग्लिश ऑनर्स है वहाँ पर हम सब पोएम्स, शॉर्ट स्टोरीज, देन नोवेल्स, ये सभी हम सब लर्न करते हैं। ओके, बट अगर मैं एसएससी को बोलूंगी तो एसएससी में क्या होता है, प्रैक्टिकल इश्यूज वी कैन लर्न। सपोज creativity, suppose if we wanted to write any topic, okay, in if we suppose any article if we wanted to write, so how we can write, what are the things we should give on that particular subject, these are the things are required in this SSC course. And yes, in future if I tell that this course is very much important like English honors also, because these two courses are totally different from each other, so दोनों ही बहुत important है हमारे लाइफ के लिए। तो आपका जो CGPA कैलकुलेट होता है मतलब ईयर एंड में, इन दैट CGPA whether this mark of skill enhancement course added or not? हाँ, ऐड होता है, बट एक बार इंटरनल ले लेती है, बट कोई सेमेस्टर नहीं होता है उसका, सिर्फ इंटरनल। ओके, और स्किल एनहांसमेंट कोर्स के बिना और कोई वोकेशनल कोर्स होता है आपका कॉलेज में? नहीं नहीं नहीं। ओके, अच्छा, इंग्लिश जो ऑनर्स कोर्स है, ठीक है, इसमें आपका जो करियर अपॉर्चुनिटीज है तो वो कैसा एक्सपोजर मिलता है आपका इंडस्ट्री में? टीचिंग एक हो गया, टीचिंग को देखो, हाँ, टीचिंग को छोड़ के बहुत सारे फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस वी कैन, दैट इज द नंबर 1 इज मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग, नंबर 2 इज राइटिंग एंड पब्लिशिंग, number 4 public relation, number 5 content writing, number 6 creative writing, number 7 of course academics, then mass communication, laws. These are the things which these are the things which we get from English honors. These are the future expectations which we already expect. That means but I love teaching, that's why I will do teaching. Okay, so but that means you are saying that English honors में अगर कोई अच्छे से पढ़े तो बहुत सारा एक्सपोजर, करियर अपॉर्चुनिटीज, हाँ, तो बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज है। ओके ओके, अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं आना चाहूंगा वो है कॉलेज लाइफ वर्सेस स्कूल लाइफ के बीच में। एक इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स हैं जो अभी स्कूल लाइफ छोड़ के कॉलेज लाइफ में आ रहे हैं, और मैं 3-4 फैक्टर के ऊपर बात करना चाहूंगा। पहला फैक्ट, मतलब एक एक करके मैं जाता हूँ। अच्छा। पहला फैक्टर है एकेडमिक्स, जो मेन फैक्टर है, उसके बारे में बताइए। एकेडमिक्स कैसे डिफरेंस होता है स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में? देखो, सबसे बड़ी ये बात तो होगा कि स्कूल लाइफ मेरा 13 इयर्स, जैसे मैं एक्सपीरियंस किया एकेडमिक्स, देन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छी तरह से मैं सीखा, बहुत अच्छी तरह से। मीन्स वहां पर वी मेक फ्रेंड्स, वी एंजॉय टुगेदर, टीचर्स आर ऑलवेज गिव्स अस फ्रूटफुल इंटरेक्शन टू विद अस,
Okay, and they always told the students that to accept the challenge. But in college life, if we talk about in college life, college क्या बताऊं मैं, मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो ड्यूरिंग लॉकडाउन डेज मेरा तो कॉलेज लाइफ घर में ही स्पेंड हो गई थी। तो कॉलेज लाइफ का बहुत अच्छी तरह से मेरा कोई एक्सपीरियंस अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि सेकेंड ईयर एंड द फर्स्ट ईयर 2 इयर्स मैंने घर में ही स्पेंड कर दिया। तो मेरा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। एंड आई गॉट सम फ्रेंड्स हु आर रियली गुड। एंड जो कॉलेज में मैं पढ़ती हूँ वहाँ पर स्टडीज अच्छी तरह से होता है, टीचर्स भी बहुत अच्छी है। देन बट आई डोंट लाइक स्कूल में जो मजा होता है ना, वैसा नहीं होता है कॉलेज में, वैसा नहीं होता है। ये मैंने 100% मैं बोल सकती हूँ। और एक क्वेश्चन मैं इसके रिलेटेड भी बोलना चाहता हूँ, मतलब पूछना चाहता हूँ, दैट इज मूवीज में जैसे देखा जाता है कि हाँ कॉलेज में जाओगे तो एकदम इंडिपेंडेंस मिलेगा, मतलब कहीं पर भी आप जा सकते हो पूरा विदाउट एनी बार, विदाउट एनी डिस्क्रिपेंसी, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं कॉलेज में, फन होता है, फेस्ट होता है। तो एक्चुअल रियलिटी क्या है कॉलेज की, सब होता है कि नहीं होता है? देखो कॉलेज में हाँ ये ठीक कि फेस्ट होता है, मैंने भी फेस्ट में परफॉर्म किया था एक बारी। फेस्ट होता है कॉलेज में, आप घूम सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बट जो सब बोलते हैं ना कि कॉलेज में ज्यादा फ्रीडम है देन स्कूल लाइफ में जो कुछ भी हम सब नहीं कर सकते हैं वो सब मैं कॉलेज में कर सकती हूँ। बट एक्चुअली द मेन थिंग इज हमारे जो कॉलेज है वहाँ पर बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। द गर्ल्स वेर देयर इन द कॉलेज, दे डिड नॉट मीन्स बंक नहीं करते हैं, जो बोलते हैं ना कॉलेज से बंक करते हैं, वैसा नहीं करते हैं। वो सब बहुत अच्छे हैं। टीचर्स आर रियली वेरी स्ट्रिक्ट। हाँ, सम कॉलेजेस आर देयर जहाँ पर फ्रीडम आते हैं कि सब घूमने जाते हैं, बंक करते हैं कॉलेज से, ये सब होता है। बट हमारे कॉलेज में ऐसा नहीं होता है, कभी भी नहीं। बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है। एंड वन मोर थिंग रिलेटेड टू कॉलेज लाइफ ओनली, कि स्कूल में हम देखते हैं पापा मम्मी का बहुत प्रेशर रहता है कि पढ़ो, मार्क्स नहीं आएगा तो क्या करोगे, डांट पड़ता है। लेकिन कॉलेज में हम जाएंगे थोड़ा तो इंडिपेंडेंस मिल ही जाता है, मतलब उतना प्रेशर नहीं रहता है। तो एक्चुअली ये मार्क्स का जो प्रेशर है, ये रट्टा मारने का जो सिस्टम है, स्कूल में बहुत चलता था कि अगर मेमोराइज करो, अगर आप मतलब ऐसे ही होता है ना, कोई अगर चीटिंग करता है क्यों करता है, क्योंकि रट्टा मारने वाला सवाल ही आता है, क्वेश्चन आता है। तो कॉलेजेस में क्या, मतलब उसका जो लर्निंग प्रोसीजर है वो क्या रट्टा मारने वाला, मेमोराइज करने वाला है, कि थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चंस भी अभी दिखने को मिल रहा है? और एक चीज कि लॉकडाउन में एग्जाम कैसे हुआ आपका, मतलब एग्जाम का जो डेकोरम वो कैसे मेंटेन हुआ? देखो लॉकडाउन में मेरा तो ऑनलाइन एग्जाम्स हुआ। ओके, एंड ऑनलाइन मेरा तो बहुत ही अच्छी हुई। ऑफलाइन भी मेरा बहुत अच्छी थी मेरी एग्जाम। बट अगर मैं सब मीन्स ड्यूरिंग अकॉर्डिंग टू सोसाइटी अगर मैं बोलूं, मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि ऑनलाइन में जो एग्जाम्स हो रहा है ना, ऑनलाइन में जो स्टडीज हो रहा है, आई थिंक ये अच्छी नहीं है फॉर स्टूडेंट्स। क्योंकि हमारे जो सोसाइटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो द स्टूडेंट्स few students are there who are really very serious about their own career, but some students are there they are, did not means they did not touch books also. For those students it is really very affected. So for me, according to my opinion, online study, online exams is not suitable for college students or school students. I think ये जल्दी खत्म हो जाए। एंड देखो कॉलेज में क्या होता है ना, स्कूल में हम सब बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं।
तो मम्मी पापा हम सबको डांटते हैं कि है पढ़ो पढ़ो, अदरवाइज मार्क्स नहीं आएगी, तुम्हारा फ्रेंड तो पास हो जाएगी तो तुम्हारा क्या होगा, फ्यूचर खराब हो जाएगा। हाँ, बट वी नो दैट a single marks can never decide our future, we know. बट स्टिल आई विल टेल दैट कॉलेज में भी हम सबको सीरियसली पढ़ना चाहिए, सीरियसली, क्योंकि जितना आवर सोसाइटी चेंज हो रहा है, इम्प्रूव्ड हो रहा है, जैसा साइंटिफिकली डेवलप्ड हो रहा है, उतना ही हमारा करियर बहुत, जॉब पाना भी बहुत टफ हो रहा है। तो स्टूडेंट्स मीन्स ऐसा नहीं है कि 12th से पास हो जाऊंगी देन बस आराम फ्री, नो, नॉट लाइक दैट, वी हैव टू बी सीरियस। एंड देखो, अगर हम सब अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं ना कॉलेज में, तो मम्मी पापा का टेंशन क्या होता है? मम्मी पापा का कुछ नहीं, टेंशन ही नहीं होता है। तो मेरा बच्चा पढ़ रहा है, तो अगर वो अच्छी तरह से पढ़े लिखे तो क्यों हम सब टेंशन करें उस बच्चे के लिए। एंड कॉलेज में मम्मी पापा डांटते नहीं है, क्योंकि वो सब बड़े हो गई है, उसका एक मेंटलिटी, एक एबिलिटी है, वो समझते हैं कि हम सब बच्चे नहीं है, हम सब बड़े हो गई है, हम सबको फ्यूचर में कुछ करना है, जिंदगी में कुछ करना है। तो अगर वो सोचता है ना खुद के करियर के बारे में, तो मम्मी पापा कभी भी उसको डांटेंगे भी नहीं। इंग्लिश ऑनर्स आप पढ़ रहे हो, जहां पर आपको स्टोरीज, पोएम्स, नोवेल्स, एपिक्स ये सब पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप अगर ये सब वैल्यूज को इंडस्ट्री के ऊपर इम्प्लीमेंट करोगे, हाउ विल यू इम्प्लीमेंट? और ये जो स्किल है, इम्प्लीमेंट करने का जो स्किल होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, रेफरेंस देना चाहता हूँ। वो है, अगर कोई इंग्लिश ऑनर्स पढ़ते हैं और उसको नॉवेल्स अच्छा लगता है बहुत, तो वो बहुत सारे नॉवेल्स पढ़े और उसके बाद वो जो नॉलेज है वो अपना मीडिया में डाल दिए। फॉर एग्जाम्पल, ही वांट्स टू बी अ जर्नलिस्ट, ही और शी वांट्स टू बी अ जर्नलिस्ट। तो अच्छा, वो जब एंकरिंग कर रहे हैं, तब अपना जो नॉवेल्स पढ़े हुए हैं, लिटरेचर पढ़े हुए, वो सब का रेफरेंस डाल के जो स्पीच है उसको इंटरेस्टिंग बना दे रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि टीचिंग को छोड़ के आप क्या क्या वैल्यूज, मतलब जो अभी गैदर कर रहे हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस कैसे देख रहे हैं इंडस्ट्री में, कैसे उसका हम लोग वैल्यू इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, वैल्यू एडिंग कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। very good question. That is, rather than teaching, if we tell that creative writing, first of all I am saying that suppose एक बच्चा जो लिखने में बहुत पसंद करता है, ओके, वो now in today we know that our internet is there, social media, Facebook, Instagram is there, so we know that how to देखो, Facebook, Instagram, these are the pages are there. we हम सब एक स्पेसिफिक टॉपिक को चुनकर अगर हम सब लिखकर हम सब हमारे जो टैलेंट्स है, जो स्किल्स है, वो हम सब पब्लिक को दिखाते हैं, देन हम सब न्यूज़पेपर में भी पोस्ट कर सकते हैं, मींस पब्लिश कर सकते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में जो हो रहा है ना, वो हम सब क्या करते हैं, मीन्स हम सब एक स्पेसिफिक टॉपिक लेकर उस पर जो न्यू जो वोकैबुलरी वर्ड्स है वो सब डाल के एक अच्छी तरह से एक आर्टिकल बना सकते हैं। एंड हम सब एक स्टोरी बुक भी बना सकते हैं, एक नोवेल भी बना सकते हैं, पब्लिश भी कर सकते हैं। मीन्स इंग्लिश इज टोटली इट्स अ क्रिएटिविटी, मीन्स जितना क्रिएटिविटी दिखाओगे थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू मैगजीन्स, थ्रू जर्नलिस्ट, उतना ही आपका इम्प्रूव होगा और आपका फैसिलिटीज होगा। आप अगर कुछ भी डिसीजन ले रहे हो, उसके पीछे आप ऑब्वियसली रीजनिंग करके यू आर टेकिंग दैट, बट अगर कोई गाइडेंस मिल जाए तो वो अच्छा होता है ऑब्वियसली। तो इसीलिए ये सारे इंटरव्यू आपको देखना चाहिए, सो दैट व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर परस्यूइंग दिस टाइप ऑफ करियर लेने के पहले आप वो फील्ड में जो है उसका बात सुनो, उसको क्वेश्चन पूछो, तो वो ज्यादा मदद होगा आपके लिए। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, peer and types of friends.
ये हम सभी मानते हैं और ये सबसे बड़ा एक चीज है कॉलेज में कि फ्रेंड्स अच्छा होना चाहिए, फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए। अगर फ्रेंड सर्कल अच्छा हो जाए तो एक तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगा ज्यादा, सेकेंड आपका अगर फ्रेंड सर्कल अच्छा ना हो तो लाइफ भी बिगड़ सकता है, करियर बिगड़ सकता है, आप गलत रूट में चले जाओगे। और थर्ड है आपका कोई भी आइडिया पे काम करना है, कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है, तो फ्रेंड सर्कल अच्छा हो तो आपके लाइक माइंडेड पीपल आपके ग्रुप में हो तो ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो आपका जो कॉलेज है, ओके, सरोजिनी नायडू कॉलेज, वो कॉलेज का पीयर एंड फ्रेंड्स कैसा था, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन है वो गर्ल्स कॉलेज है, तो आप क्या डर रहे थे कि हम लोग, मैं क्वेट कॉलेज में नहीं जाऊंगा, बॉयज होंगे, ये मतलब सिक्योरिटी का कोई चिंता था? ओके, ये दो क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उसके बाद पूछता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो बोलना चाहती हूँ कि मैं जो स्कूल में था वो सेंट जूड्स हाई स्कूल में था, वो क्वेट स्कूल था, ओके। एंड मैं डरता नहीं हूँ बॉयज से, मुझे डरता, मैं कभी भी डरता नहीं हूँ। एक्चुअली सरोजिनी नायडू कॉलेज हमारे घर के बहुत पास है, ओके। एंड हमारा मेरा जो पेरेंट्स है वो सब चाहते थे कि मैं गर्ल्स कॉलेज में एक्चुअली पढ़ाई करूँ। आई डोंट नो कि सबका ये एक फैक्ट है कि जहाँ पर गर्ल्स होगी वहाँ पर पढ़ाई होगी, वहाँ पर सब कुछ डिसिप्लिन में चलेगा। बट जहाँ पर बॉयज होगी एंड गर्ल्स होगी वहाँ पर सिर्फ गॉसिप एंड ऑलवेज मतलब बॉयज पढ़ाई नहीं करते? ये सभी होगा। नो, that is totally a wrong thing, okay, that is totally a wrong thing, I don't think that, but मेरा पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाई करूं, इसीलिए आई situated means I shifted to girls college। मतलब अगर but आपको क्वेट कॉलेज में जाना होता तो कोई भी दिक्कत नहीं होता उसमें भी? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा, मैं सबके साथ ही अच्छी तरह से एडजस्ट कर सकती हूँ, तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताइए आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, मतलब फ्रेंड्स अच्छा मिलेगी? फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहती हूँ कि हाँ बहुत अच्छी है, बहुत जॉली है, बहुत फन करते हैं, टिफिन शेयर करते हैं, मीन्स बहुत हेल्पफुल है, मीन्स जहाँ पर पढ़ाई भी बहुत मीन्स सपोज मैं कॉलेज में नहीं गई एक दिन तो वो मेरे लिए मुझे फोन करते हैं, देन मुझे सब जो कॉलेज में जो क्लासेस हो रहा है, पढ़ाई जो हो रहा है वो सब मुझे देते हैं। ऐसा मीन्स फ्रेंड सर्कल मेरा कोई एक्चुअली एज अ बेस्ट फ्रेंड और एज अ क्लोज फ्रेंड नहीं है। मैं सबके साथ ही अच्छी तरह से एडजस्ट करके बातें करती हूँ, क्योंकि कॉलेज फ्रेंड्स तो स्कूल फ्रेंड्स की तरह नहीं होगा। बट हमारे डिपार्टमेंट में जितने सारे लड़कियां हैं वो बहुत अच्छी है, हेल्पफुल है। एटलीस्ट जब जब एक्चुअली जब मैं घर में एक्चुअली जब मैं कॉलेज नहीं जाती हूँ तब ऑन दैट मुझे एटलीस्ट हेल्प मिलता है कि भगवान एटलीस्ट मेरे कॉलेज में नहीं जाऊंगी तो एटलीस्ट फ्रेंड्स मुझे हेल्प तो करे, क्योंकि टीचर्स हेल्प नहीं करते हैं कॉलेज में, तो फ्रेंड्स ही एक्चुअली हेल्प करते हैं, तो अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। अच्छा, फ्रेंड्स का बात हो गया, नेक्स्ट टीचर्स का बात। फ्रेंड्स का तो बात हो गया, टीचर्स का बात करेंगे। टीचर्स केयरिंग होते हैं ऑब्वियसली। आप प्राइवेट, आप बोले हाँ, कि आप सेंट जोसेफ कॉलेज में पढ़े हुए हैं, वो भी कोलकाता में है, और वो प्राइवेट है। तो प्राइवेट स्कूल्स में बहुत केयर मिलता है, केयरिंग होते हैं टीचर्स लोग। और कॉलेज में कितना चेंज मिलता है टीचर के बिहेवियर में, और कितना हेल्पिंग होते हैं उन लोग। देखो कॉलेज में टीचर्स अच्छे होते हैं, मैं किसी को बुरा नहीं बोलूंगी। वी शुड रेस्पेक्ट आवर टीचर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं अगर किसी का प्रॉब्लम मैं बोलती हूँ कि ये सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, कि मैम मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, वो 100% वो हम सबको सिखाते देते हैं, वो बोलते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो। अगर कोई सोशल प्रॉब्लम हो कि कोई सपोज मैं घर में जाऊंगी, मेरा बहुत जल्दी कोई अर्जेंट प्रॉब्लम है, तो ऑन दैट टाइम मिलता है, बट थोड़ा थोड़ा टाइम टीचर्स हेल्प करता है, बट ऑल टीचर्स हेल्प नहीं करता है। बट स्कूल में क्या होता है ना कि स्कूल में हम सब टीचर्स के साथ ऐसा क्लोज कनेक्शन होता था कि
जैसा कि एक माँ एक मीन्स एक मदर एक बच्चों का जैसा एक दोस्त होता है ना, एक इंटरेक्शन होता है, क्लोज इंटरेक्शन होता है, वैसा स्कूल में होता था मेरा। कॉलेज में वैसा नहीं मिला, ऐसा कोई टीचर अभी तक नहीं मिला जिसके साथ माँ की तरह मीन्स मेरी माँ की तरह इंटरेक्शन करूँ, सब कुछ शेयर करूँ, सब सीक्रेट्स को शेयर करूँ। ऐसा टीचर नहीं मिलता है कॉलेज में, फ्रॉम माय ओपिनियन। एंड बट अकॉर्डिंगली एज अ टीचिंग स्किल्स इफ आई से टीचर्स अच्छे हैं, नाइस। नेक्स्ट सवाल है कि हम लोग स्कूल्स में तो ट्यूशन एक इंटीग्रल पार्ट होता है, क्योंकि स्कूल्स में अच्छा पढ़ाई नहीं होता है। ऑब्वियसली हम मानते हैं कि स्कूल्स में उतना अच्छा पढ़ाई नहीं होता है जितना ट्यूशन में होता है। पढ़ाई अगर कोई ऐसा मतलब अगर कोई बहुत टैलेंटेड बंदा है तो सेल्फ स्टडी करके फिर भी हो सकता है, लेकिन अगर किसी को मतलब एक बार में समझ में नहीं आता है, ऐसा हो सकता है, मतलब मेजोरिटी स्टूडेंट ऐसा ही है, तो उनका एक हेल्प चाहिए कि ट्यूशन टीचर्स का। जितना भी हम बोलते हैं कि हाँ होलिस्टिक एजुकेशन मिल रहा है स्कूल में, आपका ट्यूशन का जरूरत नहीं है, लेकिन वो स्कूल वाला टीचर ही ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो कॉलेजेस में क्या ट्यूशन चाहिए कि नहीं चाहिए? आप सेल्फ स्टडी करके मैनेज कर सकते हैं? नहीं, सेल्फ स्टडी करके मैनेज हम सब नहीं कर सकते मैनेज, क्योंकि ट्यूशन टीचर्स ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑनर्स कर रहे हैं ना, तो ऑनर्स के लिए तो टीचर्स रिक्वायर्ड वेरी मच, अदरवाइज यू विल नॉट कॉप अप। मीन्स यू कैन स्टडी, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, बट अच्छी मार्क्स नहीं आएगी। सो teachers I think required in college also. अपॉर्चुनिटीज एंड एक्टिविटीज इन कॉलेज। हाँ, ये सब एक्टिविटीज होता है, वॉलंटियर, एनजीओ, ये सब होता है। एंड स्कूल जैसा कि परफॉर्मेंस होता है, बट रेगुलरली स्पोर्ट्स ये सब होता है। मीन्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अच्छी तरह से ही होता है। सब गर्ल्स स्पोर्ट्स में बहुत मीन्स हार्ड वर्किंग करते हैं। एंड जो अदर जो करिकुलर एक्टिविटीज है कि पुअर पीपल के लिए कुछ करूँ, एनजीओ जो बोलता है वो भी होता है। देन फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट से सपोज एग्जाम्पल मैंने सुना था कि हमारे कॉलेज में जूलॉजी डिपार्टमेंट से वो सबको एक जगह में लेकर गई थी कुछ प्रैक्टिकल्स के लिए। तो ये सब होता है, छोटा छोटा सर्वे होता है। जो सोशियोलॉजी करता है वो तो उसके लिए तो सर्वे होता है, बट हम तो सब इंग्लिश ऑनर्स है ना, तो हमारे लिए कोई सर्वे भी नहीं होता है और कोई एक्टिविटीज भी, सोशल एक्टिविटीज भी नहीं होता है। तो बेसिकली अगर कोई इंग्लिश ऑनर्स करना चाहता है तो कौन सी ऐसी स्टूडेंट्स को आना चाहिए, और अगर कोई बंगाली मीडियम में पढ़ रहा है और कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, वो दोनों स्टूडेंट्स अगर एक साथ एक जगह में आते हैं, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं, आपके कॉलेज में भी बहुत सारे बंगाली मीडियम, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे, और एक साथ तीन मीडियम का स्टूडेंट एक साथ इंग्लिश पढ़ रहे हो और एक ही साथ एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट का इंग्लिश के ऊपर डोमिनेंस ज्यादा रहता है, तो क्या कोई क्राइसिस होता है? अकॉर्डिंग टू माई कॉलेज, वहां पर बंगाली स्टूडेंट्स ही मैक्सिमम है जो ऑनर्स लिया, और जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी है जो इंग्लिश ऑनर्स चूज किया है, बट कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। फर्स्ट 2 डेज जब पहला जब स्टार्ट हुआ था ना हमारे क्लासेस कॉलेज में, तब ऑन दैट टाइम बंगाली स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था इंग्लिश समझने के लिए। टीचर्स इंग्लिश में बातें कर रहे हैं, बट वो समझ नहीं पा रहे। मुझे भी कुछ फ्रेंड्स मुझे भी बोलता था कि ये मुझे समझाओ, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये कैसे करूं, वो कैसे करूं। तो ये सब बोलता था कुछ फ्यू स्टूडेंट्स, बट समहाउ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जब कॉलेज होता रहा, क्लासेस होता रहा, तो सब नॉर्मल हो गए थे। सेकेंड ईयर में ऐसा फील होता है कि मेरा कि
कॉलेज में बंगाली मीडियम स्टूडेंट्स की इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स सब अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकते हैं, मिलजुल के रहते सब हैं। अच्छी तरह से इंग्लिश पढ़ सकते हैं, बैलेंस इक्वली मेंटेन करते हैं, ओके देन कोई आप प्रॉब्लम बोल रहे हो नहीं कि है। बंगाली मीडियम हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है उन लोग भी धीरे धीरे एडजस्ट कर पाते हैं ये कोर्स में, और स्पीकिंग एबिलिटी भी आ जाते हैं। ओके, स्पीकिंग एबिलिटी आ जाते हैं धीरे धीरे से। धीरे धीरे आ जाते हैं। मतलब थोड़ा हार्ड वर्क तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा, इंग्लिश मीडियम हाँ स्टूडेंट हाँ, एकदम हार्ड वर्क तो एनवायरमेंट करना में पड़ेगा। है, एकदम सब कुछ इंग्लिश देखो में है। मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है और जो अभी भी सपोज क्लास 11-12 का जो स्टूडेंट्स है जो सोच रहा है कि बीए इंग्लिश ऑनर्स में लूंगी, एक्चुअली मैं बोलना चाहती हूँ are there, we need to follow or we need to focus on that. then ही तुम इंग्लिश ऑनर्स को चूज करो, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहती हूँ कि आपका क्रिएटिव स्किल्स, आपका क्रिएटिविटी, आपका राइटिंग, आपका ग्रामर सेक्शन वो भी करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। आपका मीन्स जिस सब्जेक्ट पर आप लिख रहे हो ना उस पर आपको फोकस करनी चाहिए, एंड आपको टाइम कॉन्साइज होनी चाहिए। अगर ये 3 चीजें, क्योंकि इंग्लिश में ना बहुत लिखना पड़ता है देन पढ़ने से, राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, देन यू टेक इंग्लिश, अदरवाइज नॉट। क्योंकि इंग्लिश rather than रीडिंग एंड स्पीकिंग, राइटिंग में ज्यादा प्रेशर, राइटिंग में ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। कंपटीशन, इंग्लिश ऑनर्स में कंपटीशन कितना है, प्रेशर कितना है स्टडीज में। मतलब अगर कोई साइंस का बंदा है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट का बात करता हूँ मैं, बहुत जन से बात भी किया जो आईआईटी पास हुआ है, लेकिन अभी एक स्टैटिस्टिक्स में देख रहा था कि आईआईटी पास होके भी, मतलब जॉइंट एग्जाम पास होके भी आईआईटी में जाकर भी उन लोग ड्रॉप ले रहे हैं, क्योंकि प्रेशर संभाल नहीं पा रहे, इतना प्रेशर है, मतलब सोने का टाइम नहीं मिलता है। वैसे हम लोग के फील्ड में भी अगर बोलना चाहता हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स जो है वो भी इतना भारी भरकम है, सोने का टाइम नहीं मिलता है, आर्टिकलशिप करो, ये करो, वो करो, तो टाइम नहीं मिलता है। तो इंग्लिश ऑनर्स में कंपटीशन लेवल कितना, एक मतलब माथा में टेंशन कितना रहता है। इंग्लिश ऑनर्स भी कंपटीशन उतना ही हाई है जितना दोनों स्ट्रीम्स का है, ये तो मैं बोलना चाहती हूँ। बट क्या होता है ना कि अगर हम स्मार्टली पढ़ाई करें ना, अगर हम देखो, अगर मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं तो इंग्लिश ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ, बट in 24 hours if I study suppose from 6 p.m. to 10 p.m. suppose, if we perfectly study ना, then अच्छी तरह से हो जाता है पढ़ाई। अगर मैं 2 hours भी मैं पढ़ाई करूं अच्छी तरह से तो पढ़ाई हो जाती है। ऐसा नहीं है कि 24 आवर्स में किताबों के सामने ही मैं बैठी हुई रखती हूँ और ऑल टाइम पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, नहीं, ऐसा नहीं करती। और जो इंग्लिश ऑनर्स जो लेता है ना, अगर उसको मीन्स फ्री होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड, कि उसको एक याद होनी चाहिए कि मैं इंग्लिश ऑनर्स ले रही हूँ तो मुझे ये क्रैक करनी पड़ेगी और स्मार्टली क्रैक करनी पड़ेगी, मार्क्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और आराम से रिलैक्स, नॉट गिव स्ट्रेस टू योर माइंड, दैट आई विल डेफिनेटली टेल। एंड ये फील्ड में एक बार ऑफ कोर्स घुसते ही इंग्लिश ऑनर्स, हाँ, एक बार आई हैव एंटर्ड, सो आई हैव नो वे आउट, कोई ऑप्शन नहीं है, मैं अगर आऊंगा तो मैं क्रैक करके ही जाऊंगा बस। जो साइंस चेंज करके इंग्लिश ऑनर्स आती है, कॉमर्स चेंज करके इंग्लिश ऑनर्स में आ सकता है, ऑफ कोर्स आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। बट उसको एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि वो इंग्लिश, जितना साइंस उसके लिए प्रेशर है, जितना साइंस उसके लिए टफ है, जितना कॉमर्स उसके लिए टफ है, उसको एक चीज ध्यान, वो इंग्लिश ले रहा है तो वो इंग्लिश भी उतना ही टफ है। ये नहीं कि इंग्लिश एकदम एक बार पढ़ाई करूं तो मेरा एकदम 50 आउट ऑफ 50 मुझे मिल जाएगी, ऐसा नहीं है, ऐसा गलत बात है। अगर मैं इंग्लिश लू कि हाँ मुझे साइंस नहीं पढ़ना है,
मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब अच्छे नहीं लगता है, ठीक है मत लो, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मुझे इंग्लिश लेना ही है तो इंग्लिश से फर्स्ट ऑफ ऑल प्यार करो, वो सब्जेक्ट को प्यार करो फर्स्ट ऑफ ऑल। द सेकेंड थिंग इज इंग्लिश आप जो ले रहे हो तो उसमें फोकस करो कि आपका क्रिएटिविटी लेवल कैसी है, आपका क्रिएटिविटी लेवल कैसी है। एंड द थर्ड थिंग, अगर तुम इंग्लिश ऑनर्स चूज कर रहे हो तो तुम क्यों चूज करोगे, तुम्हारा कैरियर क्या है, तुम साइंस छोड़ के क्यों इंग्लिश ऑनर्स में आ रहे हो, फॉर व्हाट रीजन, यू हैव टू चूज योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बट मैं पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए। बोलना चाहती हूँ कि अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन साइंस एंड कॉमर्स से अगर तुम इंग्लिश ऑनर्स चूज करते हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसा मत सोचो कि इंग्लिश ऑनर्स इज ऑल्सो इजी। एक मैं स्टोरी बताना चाहता हूँ हाँ कि मैं जब स्कूल में पढ़ रहा था, मैं जब 11-12 में हॉस्टल में था, एट दैट टाइम जब मैं 11 में पढ़ रहा था और मेरा मार्क्स मैं अच्छा खासा आ रहा था, एट दैट टाइम 12 का कुछ स्टूडेंट्स से मेरे को पूछते थे, भाई तुम ये कैसे मैनेज करते हो, मैं तो इतना घंटा पढ़ता हूँ, मेरा माथा खराब होता है। तो मैं उनको एक चीज ही बोलता हूँ कि देखो, अगर आप सिर्फ पढ़ाई कर जाओगे, पढ़ाई करोगे, मतलब मोनोटोनसली, इसका कोई लॉजिक मैं भी तो नहीं। डेली डांस करती हूँ, पता है, मैं तो डेली डांस करती हूँ। हाँ, मैंने डेली मीन्स मुझे भैया के साथ गेम्स भी खेलना पड़ता है, पेरेंट्स के साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ क्योंकि सब कुछ ही हाँ। करना चाहिए। ये नेक्स्ट सवाल इसके बारे में ही है। अब ये सब सब सवाल हो सकता है, मतलब सब क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन इसको मेजर क्वेश्चन भी आप बोल सकते हो कि पढ़ाई के साथ, पढ़ाई तो एक हो गया लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट, एक्टिविटीज, स्किल बिल्डिंग, ये सब तो हो गया। आपका जो डिवोशनल एंड स्पिरिचुअल सिस्टम है, भगवान को थोड़ा प्रेयर करना, अपना मेंटल वेलबींग के लिए टाइम थोड़ा स्पेंड करना, पापा मम्मी के साथ टाइम बिताना, अपने भाई के साथ, भाई बहन के साथ थोड़ा खेलना, ये सब कितना जरूरी है, आप क्या मानते हो, मतलब इसका क्या जरूरत है हमारी लाइफ में? Of course, मैंने actually in this year, then previous year from 2020 during lockdown days, ये सब हम सब मिस करते हैं, राइट? जब हम सब स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, इतना पढ़ाई के प्रेशर होता है ना कि ये सब करने का कोई टाइम ही नहीं मिलता है हमका। तो ये सब तो जरूरी है कि होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सब फ्रेंड्स के साथ नॉट फ्रेंड्स, अगर हम सब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और फ्रेंड्स के साथ बातें भी करें थोड़ा थोड़ा सा, देन ब्रदर सिस्टर्स के साथ खेले, थोड़ा सा हमारे लिए भी कुछ टाइम स्पेंड करे, मीन्स अगर हम सब रेदर देन स्टडी, अगर हम सब एक्स्ट्रा पार्ट टाइम मीन्स करे कि पार्ट टाइम स्पेंड करे विथ फैमिली, फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड ऑल, देन हमारा माइंड भी फ्रेश, हम रिलैक्स भी हो सकते हैं, एनर्जी भी मिलेगा, बहुत कुछ कर सकते हैं, पढ़ाई में भी इंटरेस्ट, पढ़ाई में भी एनर्जी भी मिल सकता है। एंड स्पेशली ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। ओके, आप क्या मानते हो लक के ऊपर? लक एक इंटीग्रल फैक्टर होते हैं कि सपोज आप मान लो मैं बहुत पढ़ा, मेरे ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, लेकिन मैं एग्जाम देने गया और देखा कि पेपर का जो सवाल है वो मेरे सिलेबस से ही नहीं है, ये एक लक फैक्टर हो गया। मैं एक कॉलेज चूज कर रहा हूँ, बाहर से तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अंदर में जब गया खोखला निकला, तो मेरा लक है वो। मैं करियर के बारे में सोच रहा हूँ, मेरा एग्जाम है वो कल परसों, मैं एग्जाम देने जाऊंगा, उसके लिए प्रिपरेशन पढ़ता हो गया, एग्जाम नहीं हो पाया, तो ये सब लक है। तो लक के ऊपर आपका कितना बिलीफ है, मतलब लक कैसे हमारे लाइफ को देखो affect करता है? 50-50 सिचुएशन डिपेंड्स, 50-50 सिचुएशन डिपेंड्स। मैं लक को मीन्स आई डि नॉट बिलीव, बट 50-50 जब सिचुएशन सपोज क्या बताऊं, सपोज मैं एग्जांपल दूं कि मैं आज बहुत पढ़ाई किया, ठीक है, बट आज सडनली मेरा टीचर ने कॉल किया कि सोहिनी, मैं आज आपको एग्जाम नहीं लूंगी, आज मैं कोई नया चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगी, तो ये मेरा लक है, आई डोंट नो,
टीचर तो मुझे नहीं बोला, तो सिचुएशन डिपेंड करता है 50-50। एडवाइस टू न्यू यूजी एप्लीकेंट। कॉलेज में जाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि पीयर ग्रुप ये अच्छी होनी चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। सेकेंडली जो क्लासेस हो रहा है उसको क्या होता है ना कि हमारे जो कॉलेज में मैंने देखा कि रूटीन तो ऑलरेडी हम सबको मिल जाते हैं, बट कब कौन सी क्लास होगा वो आपको ही जाके आपको वो क्लास करना पड़ेगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज क्लास मिस। की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि अगर हम स्कूल में हाँ, रहते हैं, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद आपको हाँ, लेना ही होगा, अदरवाइज यू विल नॉट मतलब ट्रैवल इन कॉलेज। स्कूल में अगर हम कॉलेज स्कूल जैसा हम्म, क्या होता है ना कि स्कूल में अगर तुम अकेली बैठी हो, सपोज यू आर लोनली इन क्लासरूम, अकेली बैठी हो, टीचर आके आपको पूछेगी कि क्या हुआ आपको। बट अगर कॉलेज में आप अकेली बैठी हो, टीचर आपके सामने से चली जाएगी, बट कभी भी आपको पूछेगा भी नहीं कि बच्चों क्या होगा, क्या हुआ आपको, व्हाट हैपेंड, कभी भी नहीं बोले। तो खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए, अदरवाइज कॉलेज में ट्रैवल करना, कॉलेज लाइफ बहुत प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ेगी। कॉलेज में रिलेशनशिप में आना चाहिए कि नहीं? रिलेशनशिप देखो, नहीं, ये अगर वो लड़का एक्चुअली मैं इसीलिए पूछा, बहुत जन ऐसे सोचते हैं माइंड में कि स्कूल में ये सब करने का मौका नहीं मिलता है। रिलेशनशिप में आना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, रिलेशनशिप कोई ऐसी बैड नहीं होती है। ओके, नहीं है। अगर एक लड़का नहीं बैड नहीं होती है, क्योंकि अगर एक लड़की एक लड़का को प्यार करता है, अगर वो लड़का अच्छा है, वो लड़की के लिए अगर मैंने लड़की का फ्यूचर सोचता है, वो लड़की को प्रोटेक्ट करते हैं, वो लड़की को अच्छी तरह से गुड सजेशन गुड व्यूज देती है, तो रिलेशन में जाओ, बट पढ़ाई स्टडीज बचे। स्टडी ऐसा नहीं कि मैं उसके साथ ऑल टाइम पार्टी करूंगी, ऑल टाइम घूमने जाऊंगी, नॉट लाइक दैट। रिलेशनशिप तो रिलेशनशिप में भी ऐसा स्टैंडर्ड कल्चरल होनी चाहिए, लेवल होनी चाहिए। सो हमारे इंटरव्यू इधर खत्म होता है। वी हैव स्पेंट वेरी वैल्यूएबल एंड प्रोडक्टिव टाइम, और मैं आशा करता हूँ those students who have watched this video carefully, I think they have got all the answers. मैं वो सारे questions को ही चुना हूँ। Those are coming to everyone's mind, those who are coming in the course or rather those who are coming into college. तो यही है हमारे आज के वीडियो, आज के एपिसोड इंग्लिश ऑनर्स एंड यू। Thank you for being with us, Ms. Soinidas, and thank you for coming here and sharing your wonderful speech, wonderful experience and wonderful thoughts, especially. तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए सौम्या.शांतिपुरी को, और मैं बोलूंगा आप भी आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। और इसमें जो हमारे मेन मुद्दा है, मेन मोटिव है कि डाउट सॉल्व करना। हमारे सोसाइटी में इतने सारे डाउट्स है, ये डाउट्स को जो सॉल्व करना हमारे मेन मोटिव है। ये हम कर पाएंगे अगर एक रेवोल्यूशन आ गया ये डाउट सॉल्विंग इंडस्ट्री। तो वो रेवोल्यूशन हम करना चाहते हैं थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉडकास्ट, आर्टिकल्स एंड राइटिंग। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पे फिर मिलेंगे। बाय बाय।